नए नए गैजेट्स, नई नई टेक टिप्स और नया नया बहुत कुछ इन द फील्ड ऑफ टेक। गाइस, दिस इज व्हाट दिस शो इज अबाउट बिकॉज यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो मतलब हर हफ्ते की तरह मैं इस बार भी जो एपिसोड लेके आया हूं, आई हैव गॉट सम अमेजिंग गैजेट्स फॉर यू और साथ में आपके सवालों के जवाब भी हैं जो भी आपने पूछे हैं इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स, बिकॉज इन दिस शो आई ट्राई टू कंपाइल एवरीथिंग एंड पैक इट टुगेदर इन वन पीस। हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। आप देख रहे हैं गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं क्या है इस वीक इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स। जल्दी से शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज वी स्टार्ट, सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट ऑल हैपेंड लास्ट वीक इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स, बिकॉज हर रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो एक बार रीकैप लेते हैं इन दिस सेक्शन, न्यूज ऑफ द वीक। Qualcomm ने एक्सपैंड किया इट्स प्रीमियम चिपसेट लाइनअप विद द Snapdragon 8s Gen 3, अ प्रोसेसर जो फोकस्ड है ऑन ब्रिंगिंग एडवांस्ड AI फीचर्स टू मोर एक्सेसिबल स्मार्टफोन्स। Expect career cameras that intelligently improve photos and videos, innovative AI-generated content capabilities, and mobile gaming को एक boost with features like hardware-based ray tracing. The Snapdragon 8s Gen 3 also maintains strong connectivity with the latest 5G and Wi-Fi 7 support. The first wave of smartphones powered by this chipset is expected to launch later this month. Infinix Mobility ने recently revealed किया the expanded lineup of the Note 40 series. The global launch brings a range of new models to the market, including the Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro Plus 5G, and the Infinix Note 40 Pro 5G. ये sleek handsets boast करते हैं of MediaTek chipsets for powerful performance and offer lightning fast charging capabilities with up to 100 watts wired fast charging support. Infinix ने introduce किया its new wireless Mag charge system with the Infinix Mag Kit. The Mag Kit includes a magnetic phone case, a magnetic charging pad, and a magnetic power bank for convenient wireless charging. Realme has expanded its smartphone offerings with the launch of the Narzo 70 Pro 5G in India. Priced from Rs 18,999, the phone boasts a powerful MediaTek Dimensity 7050 chipset और एक large 5000 mAh battery with 67 watt fast charging. Its unique rainwater smart touch feature allows for use even with wet hands. The Narzo 70 Pro 5G support करता है a vibrant 6.67-inch AMOLED display with a 120 Hz refresh rate. It features a triple rear camera system headlined by a 50 megapixel Sony sensor with optical image stabilization. Available in glass green and glass gold, sales start March 22nd on Amazon.com and Realme's website. The highly anticipated Call of Duty Warzone Mobile is officially here. The first-person shooter अब available है on Android and iOS after its initial console and PC Warzone release 4 years ago. ध्यान रहे कि आपको डाउनलोड करने से पहले आपको at least 8 to 10 GB of space clear करना ही होगा. Unlike its predecessor Call of Duty Mobile, this title supports cross-progression, syncing rewards, progress, and even your battle pass across platforms. Warzone Mobile brings the iconic maps of Verdansk and Reworth Island to mobile. It features Battle Royale, multiplayer, and unique mobile exclusive events. Expect smooth controls, customizable loadouts, and adjustable graphic settings for optimized gameplay. फ्रेंड्स, फॉर द टॉप स्टोरी ऑफ द वीक आई हैव गॉट दिस। अब आपको देख के लगेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इज दिस अ स्मार्ट वॉच? इज इट सम अदर काइंड ऑफ डिवाइस दैट आई पुट ऑन माय रिस्ट टू ट्रैक स्टफ? वेल, ये एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम सैमसंग एंड दिस इज द ऑल न्यू गैलेक्सी फिट 3। अब बेसिकली इट इज नॉट अ स्मार्ट वॉच समथिंग लाइक द गैलेक्सी वॉच सीरीज जो हमको पता है, इट इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मैंने फॉर एग्जांपल इस एप्पल वॉच को पहना है, बट ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत स्पेशल है बिकॉज इट डज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो आप एक स्मार्ट वॉच में कर पाएंगे, लेकिन एक अलग फॉर्म फैक्टर के साथ में। काफ़ी स्लीक इसका डिज़ाइन है, इट्स क्वाइट अपडेटेड फ्रॉम द प्रीवियस फिट दैट वी नो। अभी व्हाट वी हैव इज अ कंप्लीट एल्यूमिनियम केसिंग, काफ़ी प्रीमियम में फील होता है। द स्क्रीन इज नाउ वाइडर, इट स्ट्रेचेज टू 4 सेंटीमीटर्स, और आपको ये जो डिवाइस है जब इसको पहन लेते हैं तो काफ़ी हल्का फुल्का रिस्ट पे फील होता है, और एट द सेम टाइम दिस कैन ट्रैक मल्टीपल थिंग्स।
आपके ब्लड ऑक्सीजन से लेके आपकी नींद कैसी रही है, हाउ मेनी स्टेप्स यू आर डूइंग, इट कैन ट्रैक वेरियस डिफरेंट वर्कआउट्स। आप यहाँ पे अपना स्ट्रेस लेवल देख सकते हैं। बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा फिटनेस बैंड आपने अपने रिस्ट पे पहना है, बट ये जो बैंड है ये काफ़ी स्मार्टली काम करता है। द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे जो बैटरी है इट गोज अप टू 13 डेज। तो एक बार देखते हैं, नो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक दैट हाउ इज दिस Galaxy Fit 3 एंड क्या क्या ये फीचर्स लेके आता है व्हाइल यू आर यूजिंग दिस अटैच्ड टू योर रिस्ट। Say hello to the all-new Samsung Galaxy Fit 3, a fitness tracker that wants you to feel your absolute best. Galaxy Fit 3 boast करता है एक wider screen जो पहले से 45% बड़ा है। Now you can check all those important health stats with even greater ease. Plus ये आता है with a sleek aluminium body and a super comfy fit, so you look and feel great wearing it day and night. And with 100 plus watch faces to choose from, including your own photos, ये watch बन सकती है आपकी perfect styling accessory. Staying on top of your health is a breeze with the Galaxy Fit 3. Samsung knows sleep is key, so the Fit 3 monitors patterns and snoring, giving you insights to level up your rest. Plus its awesome safety features like fall detection and emergency SOS help make sure you're looked after. और हाँ, if you lose your phone, the Fit 3 can help you find it too. Think of the Galaxy Fit 3 as your super stylish health and wellness coach. It's packed with tools and features जिसके help से आप अपने unhealthy habits को ditch कर सकते हैं, get moving and sleep like a champ. Plus with an awesome battery जो up to 13 days तक last कर सकता है, your new fitness buddy is always on the go with you. Now friends, priced at just ₹4,999, I would say this could be an option for people जिनको एक बल्कि स्मार्ट वॉच नहीं चाहिए। Maybe they prefer wearing an analog watch, लेकिन उनको at the same time एक ऐसा हल्का फुल्का डिवाइस चाहिए जिससे वो सारे हेल्थ डेटा को ट्रैक कर पाए। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आंसर। बैटरी रन्स फॉर अ लॉन्ग इनफ ड्यूरेशन कि आपको बिना चार्ज की टेंशन लिए इसको यूज करने का मौका मिलेगा। एंड आई थिंक द वे द कंप्लीट डिवाइस बिहेव्स इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू यूज इट एज अ मीडिया कंट्रोलर, आप कस्टमाइज कर सकते हैं वॉच फेसेस को। तो आई वुड से दिस is an essential for anyone trying to get into the field of fitness, और इसीलिए मैंने इसको पहन लिया है। काफ़ी हल्का फुल्का है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने पहन रखा है, but at the same time this tracks everything। अब वैसे मुझे एवरीथिंग से याद आया, ट्रैकिंग की बात से इनफैक्ट याद आया। गाइस, डिड यू नो कि आप अब ट्रैक कर सकते हैं अबाउट योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन हेल्दियर एनवायरनमेंट? बिकॉज अगर आप ऊबर यूज करते हैं तो आई एम श्योर आपको अभी पता होगा कि उसमें देयर इज एन ऑप्शन कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बुक कर सकते हैं इफ यू प्रेफर गोइंग सस्टेनेबल। लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है जहाँ पे आपको ऊबर दिखाता है कि आप क्या सेव कर रहे हैं कंपेयर टू अगर आप एक नॉर्मल व्हीकल में जाते हैं तो आप कितने कार्बन एमिशंस होने से रोक रहे हैं, और वो आपको दिखाता है इन फॉर्म ऑफ ट्रीज बीइंग प्लांटेड। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आप अपने डेली हैबिट्स में जब आप सुबह ऑफिस के लिए ऊबर ले रहे हैं, जब आप शाम को कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आप एक ईवी यूज़ करते हैं, सो हाउ मच एसेंशियली आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। दिस सर्विस इज लाइव नाउ इन मल्टीपल इंडियन सिटीज़। तो नेक्स्ट टाइम यू बुक एन ऊबर, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं, इट विल kind of contribute towards the environment, or you can clearly track in form of number of trees being planted. So I'm sure normally we friends sometimes we see each other's Uber ratings कि किसको कितने स्टार मिले हैं, किसी की कितनी रेटिंग है। तो I'm sure going next this could be a thing that we all might track कि अच्छा मैंने कितने ट्रीज को प्लांट किया by going electric, या कौन आगे जीत रहा है। It's a nice thing. Did you know this? If yes, amazing. If no, please let me know. You know the address. It's tg@ndtv.com. अभी टाइम है हमारे आगे बढ़ने का और देखने का कि what exactly is the next gadget I'm gonna showcase in this episode. So friends, next I have is this shiny new device coming straight from the Realme factory. This is the all new Realme Narzo 70 Pro 5G. और मैं शाइनी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज सी ऑफ कोर्स इट्स शाइनी, मतलब द वे इट लुक्स, इवन द फ्रेम इज वेरी शाइनी। एट द सेम टाइम दिस फोन्स रियली शाइन्स ब्राइट जब हम इसके फीचर्स को देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें रियलमी इज पैक्ड। व्हाट वी हैव इज अ सोनी IMX890 सेंसर के साथ आने वाला 50 मेगापिक्सल्स वाला प्राइमरी कैमरा दैट हैज OIS। एट द सेम टाइम इनसाइड द फोन इज रियली पैक्ड विद फीचर्स। इनफैक्ट हम यहाँ पे अभी इस फोन में जेस्चर्स से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज
this has got something that Realme calls air gestures. So अगर आप देखो इसको and have a closer look about how this Realme Narzo 70 Pro really is, I would say very interesting mid-range smartphone coming straight from Realme. Finally, the wait is over. Realme's latest hotshot, the Narzo 70 Pro 5G, finally India में launch हो गया है. This phone is packed with amazing features that will make you go wow. इस phone में है एक rainwater smart touch feature. This means no more tensions about phone usage in a light drizzle. The powerful MediaTek Dimensity chipset lets you game, multitask and do everything else at lightning speed. The 5000 mAh battery and SuperVOOC fast charging will get you back in action in no time. The phone's horizon glass design gives it a super premium head-turning look. Realme has kept it affordable. Narzo 70 Pro 5G starts at just Rs 18,999. You can grab it in stylish glass green and glass gold colors from March 22nd on Amazon and the Realme website. With its awesome display, camera and overall performance, the Realme Narzo 70 Pro 5G is a total paisa vasool deal. If you're looking for a smartphone that's powerful, stylish and affordable, this is it. Now friends, as I promised during each episode कि आपको मिलने वाला है बहुत कुछ in this tight duration. तो अभी तक हमने देख लिया है about this Galaxy Fit 3, this all new Realme Narzo 70 Pro, but ब्रेक के बाद आई हैव गॉट सम अमेजिंग स्टफ फॉर यू बिकॉज आई एम गोना शेयर एन इंटरेस्टिंग टिप और आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. Hello friends, welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji. मेरा नाम गौरव है aka Technical Guruji और यहाँ पे मैं अभी आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक टिप जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है. इनफैक्ट माइट सेव यू लॉट्स ऑफ मनी एज वेल. आपने नोटिस किया है कई बार कि आपका टीवी अगर आप देखते हैं या मे बी यू आर वॉचिंग योर लैपटॉप स्क्रीन या मे बी योर कंप्यूटर स्क्रीन, तो आपको डेड पिक्सल्स वहाँ पे दिखते होंगे कभी कभी कि देर आर अ फ्यू पिक्सल्स जो एकदम ब्लैक पड़ चुके हैं और वो आपको ऐसा एक एज अ डॉट नज़र आता है अपने स्क्रीन में. Well, sometimes this could be an issue coming straight from our mistakes. जहाँ तक बात है, maybe a new product under warranty, if you get any such issue, definitely must be repaired या replaced, as per the brand's policies. But अगर हम बात करते हैं टेलीविजन की, जहाँ पे we sometimes use these devices for years and years, तो हमें अगर कुछ एक हैबिट को चेंज करना हो तो वो हैबिट ये हो सकती है कि हम लंबे टाइम तक जब हम उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर दें. Sometimes you might have seen that computers idle अपने स्क्रीन पे होते हैं just showing their basic wallpaper और वो घंटों घंटों ऑन रहते हैं on standby. What happens is अगर ये जो पिक्सल्स हैं ये एक लंबे टाइम तक एक constant same image को दिखा रहे हैं और they are constantly being on, तो ये बर्न हो सकते हैं which ends up in getting these pixels as dead ones और वो आपको स्क्रीन पे काली डॉट की तरह दिखाई देते हैं. तो इंश्योर कि जब भी आप अपने किसी डिवाइस को यूज़ करते हैं, बी इट योर टीवी या बी इट योर कंप्यूटर मॉनिटर, तो उसको आइडल ना छोड़े लंबे टाइम तक. स्पेशली यूज़ अ वॉलपेपर और यूज़ समथिंग जो डायनामिकली कंटेंट को चेंज करता है. अदरवाइज यू माइट गेट इनटू दिस इशू और फिर उसके बाद में समटाइम्स रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट्स के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू यूज़ देम विद दिस थिंग इन माइंड और आप लंबे समय तक अपने उन डिवाइसेस को यूज़ कर पाएंगे. Friends, it's time now for my favorite section about this episode because हम हमेशा जब Q&A की बात करते हैं so Ask TG is the thing जो मुझे बहुत पसंद आती है because I get to answer all your questions. So let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या क्या questions हैं. Hi TG, which is the better phone between OnePlus 12 and Xiaomi 14 in terms of camera and performance? Okay, so you have asked that आपको जानना है which is the better device between OnePlus 12 and Xiaomi 14 in terms of camera and performance. So let me get this straight. In terms of camera, Xiaomi might jump slightly ahead of the OnePlus 12. Not by a huge margin, but let's say slightly ahead. But if I were to recommend you an overall good product in terms of camera, performance, software, like everything combined,
I would recommend OnePlus 12 over the Xiaomi, considering Xiaomi doesn't have that kind of brand value in that premium segment. OnePlus, you know, has been there for a long time now, or OnePlus 12 is an amazing smartphone overall. If you combine especially the clean experience of Oxygen OS, yeah, even the camera is fantastic. Xiaomi 14 थोड़ा थोड़ा आगे निकल जाता है, but overall, I would say OnePlus 12 would be a better pick. I mean, pretty simple. If you have access to your mobile phone number and अगर आपको वहाँ पे SMS की access है और अगर आपने वो नंबर अपने अकाउंट में ऐड किया है, इट्स प्रीटी सिंपल. यू जस्ट गो टू द पासवर्ड रीसेट ऑप्शंस और जो आपको OTP आपके फ़ोन पे आ रहा है, दैट सिक्योरिटी कोड, जस्ट एंटर दैट एंड गूगल शुड लेट यू रीसेट योर पासवर्ड. So just use a different device to log in. Pop in your SIM card एक दूसरे फ़ोन में जहाँ पे अगर आपको SMS दिख रहे हैं आते हुए, those SMS coming into your phone, maybe you can borrow someone's phone in family. और उसके बाद में आप Google पे जब log in करने जाएंगे, if you follow the instructions, it might guide you कि आपके फ़ोन पे एक OTP आने वाला है, that you know security code of Google, and easily you can reset your password. ऐसा कोई ऐप है जिससे एक फ़ोन से 5-6 स्पीकर्स या ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं? If you want to connect 5 to 6 speakers or earphones, well, I'm not sure what you are up to if you want to set up a party scene all together. तो definitely आप किसी ऐप से तो ये काम नहीं कर पाएंगे. There are a few phones that support multiple Bluetooth devices, but वो भी मैंने जहाँ तक देखा है, it's limited to only 2. कि आप 2 ईयरफोन्स या 2 स्पीकर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ. Alternatively, what you can use is there are multiple splitters. तो इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस जो अपने आप फ़ोन में अटैच करते हैं और वहाँ पे आपको एज एन आउटपुट मल्टीपल 3.5 mm वाले जैक्स मिल जाते हैं. सो यू कैन कनेक्ट मल्टीपल वायर्ड स्पीकर्स और ईयरफोन्स और समथिंग. वो यू कैन ट्राई इफ योर फोन सपोर्ट्स दैट. अदरवाइज सैडली देयर इजंट एन ऐप जिस ऐप की मदद से आप 5 या 6 ईयरफोन्स या स्पीकर्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाएंगे. बट हाँ, देयर इज वन सोल्यूशन इफ़ यू रियली वांट दैट, कि इफ़ यू ट्राई गेटिंग स्पीकर्स फ्रॉम द सेम ब्रांड, लाइक फॉर एग्जांपल सोनी और JBL, एंड देयर मॉडल्स विच आर कंपैटिबल विद ईच अदर, तो आप उन स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज एन ऑप्शन, बट नॉट फ्रॉम द फोन. वो स्पीकर्स आपस में कनेक्ट होंगे एंड यू कैन एसेंशियली प्ले द सेम थिंग इन दोज स्पीकर्स. कुड बी एप्पल्स HomePod, कुड बी दोज JBL और सोनी स्पीकर्स, मार्शल स्पीकर्स इन फैक्ट. तो वो हो जाते हैं सैडली नॉट फ्रॉम द फोन. हाय TG, कैसे पता चलता है कि एक फ़ोन क्लासिक या विंटेज बनेगा? क्या आप भी फ़ोन्स कलेक्ट करते हो? Well, definitely I collect lots of phones in my collection. मेरे पास बहुत सारे phones हैं. And speaking of कि पता कैसे चलता है, so आपको देखना होता है कि what is that special feature जो वो फ़ोन लेके आ रहा है. Is it the first one? Is it the last one? या कुछ ऐसा iconic है क्या उस फ़ोन के साथ में? For example, if you look at the first iPhone, well, it's iconic and it holds immense value. अगर हम बात करते हैं नोकिया की, तो नोकिया 808 PureView, इट वॉज द फोन दैट केम विद 41 मेगापिक्सल्स कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज डेफिनेटली आइकॉनिक. और मे बी द नोकिया लुमिया 1020, अगेन वेरी आइकॉनिक फोन. अगर हम सैमसंग की बात करते हैं, सो लेट्स से द सैमसंग मैट्रिक्स फोन जो एक मूवी में भी यूज हुआ था, और मे बी द फर्स्ट सैमसंग फोल्ड फोन. लाइक फोल्ड 5 आ चुके हैं, बट द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली द मोस्ट आइकॉनिक. सो हमको देखना होता है कि क्या फोन लेके आ रहा है नया. But if it's a generic smartphone, for example, the phone that we covered today, the Narzo 70 Pro, अब वो फोन मार्केट में इकलौता नहीं है. There are multiple phones similar to that one. So वो कभी भी collector's phone नहीं बनेगा. But maybe tomorrow if Apple comes up with a phone जो कि एक folding iPhone हो, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू होगी. So हमको देखना होता है कि वो फोन में क्या नया है या क्या स्पेशल है जिसकी वजह से वो एक collector's phone बन पाएगा in future. So friends, that's it from this week's episode of your favorite show around gadgets, the Gadgets 360 with Technical Guruji show. और I am sure आपको बहुत मजा आया होगा हर हफ्ते की तरह, because मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ. And if you have to say anything to me, if you want to deliver any message, if you want to ask your questions, इन सभी के लिए you know the address. It's pretty simple. It's tg@ndtv.com. तो आप लिख डालिए अपनी emails में अपनी सारी प्यार भरी बातें. Maybe it's a suggestion, maybe it's a query, or maybe it's a feedback.
बैक और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक विद सम इवन मोर अमेजिंग गैजेट्स एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन पैक्ड इनटू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ द सेम शो। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।